بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہمیں اس وقت اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں لا ایکسپرٹ ہیں رانا انتظار صاحب. رانا انتظار صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی. رانا صاحب آپ کی طرف بڑھنے سے پہلے کرنل سیف صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو ہم نے بھی بات کی کہ ایک من پسند ججز اور ناپسندیدہ ججز کا ایک ہمیں درمیان میں ایک کنفرنٹیشن نظر آ رہی ہے, یہ ایک خلیج آپ کہہ لیں کہ یہ جو نظر آ رہی ہے. کچھ سیاسی جماعتیں ہیں ان کے من پسند ججز ہیں, کچھ کے ناپسندیدہ ججز ہیں. تو یہ جو خلیج ہے یہ نہ صرف ادارے میں نظر آ رہی ہے بلکہ پارلیمنٹ کے ساتھ بھی ایک کنفرنٹیشن کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اس تقسیم کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اجازت دیں, وکاس بھائی نے اندھیروں کی بات بھی کی. شکوائے ظلمت شب, شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر ہے اپنے اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جائیں. مل جل کے روشن صبح کا انتظار کریں اور مل جل کے ملک کو ریکور کریں. ملک سنگین حالات میں ہے اور اس کی اکانومی کو, نیشنل سیکورٹی کو, اسٹیبلٹی کو اور غریبوں کی جو حالت زار ہے اس کو, ہر چیزوں کو ہم سارے پاکستانی ہیں, بھائی ہیں, ہم ملتے ہیں جلتے ہیں, ایک ہی ریجن ہے, تو ہم اپنے پاکستان بچانے کی ایک کمپین شروع کریں. یہ کمپین نہ شروع کریں کہ پاکستان ڈی سٹیبلائز کیسے ہوتا ہے. آپ جھٹکے لگانے کی بجائے ملک کو سیمنٹ کرنا شروع کریں, ری انفورس کرنا شروع کریں. ملک کو سارے ادارے, ان کے زوما لیڈران صاحبان اور سارے کے سارے میڈیا, چاروں کے چاروں اسٹیٹ پلرز جتنے ہیں, میڈیا ہے, پارلیمنٹ ہے, عدلیہ ہے, افواج ہیں, جتنے بھی ہیں, ہر کوئی اپنا رول جو ہے وہ اپنی ذات سے آگے ہو گئے. اپنے قومی مفاد کے لیے ذاتی مفاد کو چھوڑ دیں. اگر ہم سارے اس چیز پہ راضی ہو جائیں تو ملک آپ کا بہت ترقی. سر یہ تو بات ہو گئی نا کہ یہ ہونا چاہیے, اور یہ سب اداروں کو بھی پتہ ہے, ہر فرد کو بھی پتہ ہے کہ یہ سب ہونا چاہیے اور یہی ملک کی بہتری کے لیے ملک کی بہتری کے لیے بہتر ہے. تو لیکن ہوتا نہیں ہے, ایک وہ کنسنسس ڈیولپ ہی نہیں ہوتا. تو میری گزارش یہ ہے کہ نیشنل کنسنسس کی ابھی اس سارے کنفیوژن میں کال آنی بھی کمزور ہو گئی ہے. نیشنل کنسنسس کی بات کرنا, پارلیمنٹ میں موجودہ وزیر اعظم شہباز صاحب نے ایک دفعہ اکانومی کا, ایک دفعہ انہوں نے پولیٹیکل, 2 دفعہ کال دی مل بیٹھنے کی. اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں کہ جس میں مجھے نظر آتا ہے کہ وہ بھی کنونس ہو گئے ہیں کہ نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے. جب سارے ملک بچانا چاہتے ہیں اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. دیکھیے نا, یہ ہم کہیں کہ کس کا فائدہ ہوگا, کس کا نقصان ہوگا, میں بتاتا ہوں سب کا نقصان ہوگا, کسی کا فائدہ نہیں ہوگا. جب آپ کا ملک اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہوا ہے کہ آپ تو تنخواہیں دینے کے قابل نہیں رہ گئے ہوئے, آپ بینک سے قرضہ لیتے ہیں تو تنخواہیں دیتے ہیں. آج کے دن میں ہاف پیج کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ تھی ایف بی آر کی کہ آپ اپنے ٹیکس کا 1/4 حصہ ایڈوانس جمع کرا دیں. 30 سپتمبر کو آپ نے ریٹرن دینی ہے. آج 24 سپتمبر ہے, تو اتنی بڑی ایڈ کیوں آ گئی؟ فائنینشیل کرائسس ہے. تو ہم بار لیکن ایف بی آر جو ہے وہ اپنے معاملات تو ٹھیک کرتی نہیں ہے. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں, سیلریڈ کلاس پہ اور ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں, لیکن جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ بھی کر رہے ہیں کیونکہ سب کی سیلریز سے کٹ جاتے ہیں آلریڈی. لیکن ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ پھر بھی یہ پریشر یہ ہے کہ جی آپ نے فائل نہیں کیا, اور فائل کرنے کے لیے آپ جائیں تو وہ آپ ذرا ویب سائٹ کھولیں, وہ آسانی نہیں ہے اس فارم کو فل کرنا, یا اس کے لیے اور لوگ ہائر کرنے پڑتے ہیں. میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو بھی پتہ ہوگا اور اداروں کو بھی پتہ ہوگا, کاروباریوں کو بھی پتہ ہے, آپ کا فلائٹ کیپٹل جو ہے, فلائٹ آپ یہ کیپٹل آپ کا جا رہا ہے باہر. فلائٹ آف کیپٹل پہ دھیان دیں, بڑی تیزی سے نکل رہا ہے ملک آپ کا جو نیچے جا رہا ہے, اس لیے کہ سرمایہ نکل رہا ہے. کارخانے بند ہو رہے ہیں, آپ کے کاروبار بند ہو رہے ہیں, آپ کے پراپرٹی کے اوپر بریک لگا دی ہے. فارمر کی گندم اندر پڑی ہوئی ہے, اس کو کیڑے کھا رہے ہیں. اپریل سے لے کے سپتمبر ہو گیا رینی سیزن میں, اس میں ہر قسم کے کیڑے گئے ہوئے ہیں. اس کو یہ نہیں پتا آج اس کی گندم جو ہے وہ 2500-2600 میں فیڈ مل والے جانوروں کو کھلانے کے لیے خرید رہے ہیں, اس لیے کہ آپ نے گندم کا رستہ. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ایف بی آر کے اندر اتنی کوئی کمزوریاں ہیں کہ وہ جانتے ہیں ان کے اپنے اندر کمزوری ہیں.
खराबियां हैं, करप्शन है, इनएफिशिएंसी है, सब कुछ है। वकास मान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कर्नल साहब के साथ एग्री करता हूं और उसमें सिर्फ इतना ऐड करूंगा। कर्नल साहब, आपने बड़ी बजा तौर पे फरमाया कि हमारे मसाइल बहुत बड़े हैं इस वक्त। ये 25 करोड़ आबादी का मुल्क है और लेकिन कर्नल साहब देखें, ट्रांसपेरेंसी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मेरा ताल्लुक एक गांव से है। मैं एक छोटे गांव की मिसाल देता हूं कि गांव में जो एक चौधरी हो ना, या मलक हो या वडेरा, कोई जो बड़ा हो या ताकतवर हो, जिसके पास पैसा हो, वो अगर दूसरे लोगों के हुकूक को दबाता है, जब उनके ऊपर जुल्म करता है, उनके बुनियादी हुकूक का ख्याल नहीं करता, तो लोग वो गांव छोड़ना शुरू कर देते हैं। यही मिसाल आप पाकिस्तान पे लेंगे। सर, बात यह है कि आप निज़ाम को ट्रांसपेरेंट करें और ये जितने आप अच्छी बातें कर रहे हैं और इसके समरात आने चाहिए सर, वो तभी आएंगे जब निज़ाम में ट्रांसपेरेंसी आएगी और हम अपने रोल को सिर्फ बातें नहीं करेंगे। यकीन माने, आप पाकिस्तान के किसी चौक चौराहे में चले जाएं, हर बंदा अच्छी बातें कर रहा है, हर बंदा किसी गमी खुशी पे चले जाएं, बट देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन सर। यहाँ पे हर बंदा, मेरे समेत हर बंदा कहता है जी मेरिट होना चाहिए। जब उसकी बारी, अपनी बारी आती है तो कहते नहीं जी हुण काम होना चाहिए। जी वकास भाई, मैं आपसे 100% जी, मैं आपसे सर जी, अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि आपने जब एक बनानी है तो उसकी जो बुनियादें हैं वो अगर आप ठीक नहीं करेंगे और उनमें झूठ है और उनमें मनमानी है चंद एक अफराद की, तो फिर वो काम नहीं चलेगा। आपकी जो कौम है, ओवरऑल आपकी यंग जो पॉपुलेशन है, मेरा दिल दुखता है। मैं अपने बचपन में जब भी मुझे कोई बंदा पूछता था कि आप बड़े होके क्या बनोगे, तो मैं कहता था कि मैंने आर्मी ऑफिसर बनना है, मैंने फौज में जाना है। सच्ची बात यह है कि आज आपका जितनी यंग जनरेशन है, वो आर्मी को जो लोग सलूट मारा करते थे, वो बहुत बुरे अल्फाज कहते हैं। सर, जब आप जमहूर की आवाज को नहीं सुनेंगे, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने जो राय दी उसको नहीं सुनेंगे और एक या चंद एक अशखास बैठ के ये कहेंगे कि ये सारे लोग बेवकूफ हैं, जो हम समझते हैं वो ठीक है, तो सर फिर आप वकास साहब, लेकिन इसी का फायदा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज उठाती भी तो आई है ना। 2018 में जिस तरह से आपकी गवर्नमेंट आई है, तो आप आज एतराफ कर लें तो आप आगे बढ़ जाएंगे ऑब्वियसली। अच्छा, मैं टॉपिक की तरफ जरा वापस आ रही हूँ। राना इंतजार साहब, ये जो अदालतों में हम देख रहे हैं कि कुछ अफराद का रवैया ऐसा है, ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो है वो आईनी अदालतों का कयाम जरूरी हो गया। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि अदालतों में ये जो हमें खलीज नजर आ रही है, अदालतों के अंदर कुछ लोग जो हैं वो ऑपोजिट आइडियोलॉजीज के साथ या ऑपोजिट साइड्स लेकर या लाइक माइंडेड एक वो हम देखते हैं कि कुछ के गोल सेट हैं और हर किसी के अपने गोल्स हैं और उसको फॉलो किया जा रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि ये इसका वाहिद हल है? तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब गवर्नमेंट से अभी तरामीम मंजूर नहीं हो रही, तो इस वक्त मंसूर शाह साहब पे शदीद दबाव डाला जा रहा है कि आप रिज़ाइन करें। जिस तरह एजाजुल हसन साहब पहले रिज़ाइन कर गए थे, मगर वो अपने फैसले से अटल हैं और वो इस तरफ नहीं आ रहे। क्या ऐसी बात जस्टिस मंसूर साहब की तरफ से की गई? मैं ऐसी बात उनकी तरफ से कैसे आएगी, यहाँ कभी आती है? अब जो अगर जस्टिस एजाजुल हसन की तरफ से आ सकती है तो वो रिजाइन कर गए थे मैडम, वो रिजाइन करके चले गए थे कि अगर नून की गवर्नमेंट आ रही तो उस वक्त भी उन्होंने शर्त रखी थी कि जस्टिस एजाज साहब रिजाइन करें। वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, वो रिजाइन करके अब आगे ये किया जा रहा है। और दूसरा ये है कि अनफॉर्चुनेटली कि एक इदारे की सुप्रीमेसी के लिए हम दूसरे इदारे तबाह करते हैं। और दूसरा ये कि अपनी मनपसंद चीज़ें आप कह रही हैं। आईनी अदालत के लिए अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कितनी लिटिगेशन जाती है? 0.001%। जो आम लोगों के मसाइल हैं वो तो सिविल कोर्ट्स और मजिस्ट्रियल कोर्ट्स में अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी तो 54,000 जब काजी फैजी से मैडम 54,000 की बात करिए, 28 लाख केसेस हैं पाकिस्तान में। 28 लाख केसेस हैं आपके सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट्स में। आपने उनका करना है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना, सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आना है वो बिल्कुल फाइनल वर्डिक्ट है, फिर फाइनल वर्डिक्ट है। मैं ये नहीं कह रही कि इस लेवल पे, मैंने सबसे पहले भी यही बात की थी कि हाई कोर्ट्स की, सेशन कोर्ट्स की और जो सिविल अदालतें हैं उनमें रिफॉर्म्स होना ज्यादा जरूरी है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसका फाइनल वर्डिक्ट होता है। और फिर आप ये देखें कि अगर वहां पर भी लोगों के केसेस जाने की बजाय यही आईनी और सियासी केसेस जाते रहेंगे, ये हमारे तमाम सियासी मामला जो है, हर पॉलिटिशियन जो है वो अपना केस उठा के सुप्रीम कोर्ट में
में पहुंचेगा तो फिर क्या मामला होंगे? सुप्रीम कोर्ट को भी तो नहीं है ना सुनना चाहिए, वो भी पकड़ के सारे जजेस आपके फुल बेंच बना के आप इसी काम पे लग जाते हैं, उसमें भी आपको तो इसी का तो हल है कि आप अदालत ही एक अलग इसका बना ये दें। हल नहीं है मैडम। अच्छा। इसका फिर आप प्राइम मिनिस्टर भी 2 कर दें, फिर आपके सीएम भी 2 कर दें, उसके बाद आर्मी चीफ भी 2 कर दें, एक जंग के लिए कर दें, एक आम हालात के लिए कर दें, ये तो कोई तरीका नहीं है। अदालतें तो जितनी अदालत बन जाए ऐसे नहीं है। उतना आपके बेहतर होगा 17 ना। जजेस हैं, आप बढ़ा के 20-25 कर लें, मगर इस वक्त बात होती है हर चीज की इंटेंशन क्या है। इस वक्त इंटेंशन इनकी ये नहीं है, आपको भी पता है कि उनको पसंद नहीं है कि जैसे मंसूर साहब आके बैठ जाएं और वो चीफ जस्टिस बन जाए। लेकिन आज इरफान ठीक है। सिद्दीकी साहब ने कहा है कि अपनी पसंदीदगी का दाग जो है वो जस्टिस मंसूर पर लगाकर उन्हें क्यों फैज हमीद बनाना चाहते हैं? ये तो चले वही कह सकते हैं, इस वक्त जो जितनी ये आपको सामने है कि चीज़ें हो रही हैं, इसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है कि जस्टिस मंसूर अली शाह किसी भी तरीके से चीफ जस्टिस मत बने, सिर्फ इतनी सी बात है। इसके लिए सारी एफर्ट की जा रही है, उसके लिए अमेंडमेंट की जा रही है, उसके लिए आईनी अदालत की बात आ रही है। अगर देखें तो अगर वो अनाउंस कर देते हैं जस्टिस मंसूर को नेक्स्ट चीफ जस्टिस, तो फिर तो कोई एतराज नहीं होगा, फिर आईनी अदालत बन जाए? नहीं, आईनी अदालत फिर भी नहीं बननी चाहिए, इसमें ऐसी चीज नहीं है। क्यों आप इसके मुखालिफ क्यों हैं? क्योंकि कानूनी माहिरीन जो हैं चीफ जस्टिस मैडम कह रहे हैं कि ये जरूरत है। नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज के हक में नहीं हूँ। किसी भी इदारे का सरबरा एक होता है, किसी भी घर का सरबरा एक होता है, किसी भी गाड़ी का ड्राइवर एक होता है। जब आप 2 करेंगे उसका नुकसान मैं भी आपको बता देता हूँ। एक आईनी अदालत में फैसला कर लेगा, एक आम अदालत में कर लेगा, क्योंकि केस को घुमा के हमने पेश करना है ना। ठीक है, तो चीफ जस्टिस वो फिर कानून ऐसा बना देना। नहीं, कानून ऐसा नहीं ना बनता है। कानून आपके 58(2)B में कभी नून जाती रही, कभी पीपल्स पार्टी। अनफॉर्चुनेटली बात है पॉलिटिकल लोगों की। पॉलिटिकल लोग जो हैं वो अपने जाती जो है पसंद नापसंद के, आप नैब के लॉज देख लेना, अब आगे इन्होंने आके चेंज करने शुरू कर दिए हैं। पहले आप पोलिटिसाइज करते हैं लोगों को, उनको आप स्क्रू करते हैं। बात ये आप इदारों को बनने दें, इदारे जब आगे चलेंगे उससे आपकी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी, आपका सिस्टम स्ट्रांग होगा। आप आगे अब अनफॉर्चुनेटली अगर आप बात करते हैं मुझसे, तो ये दोनों सारी पॉलिटिकल पार्टियां गलत कर रही हैं। सुबह से शाम तक इनको तवज्जो ही आम पब्लिक की तरफ नहीं है कि आम पब्लिक के मसाइल क्या हैं, उनकी तरफ किसने जाना है। अब सुबह इमरान खान होता है, रात को नवाज शरीफ होता है, शहबाज शरीफ होता है। भी क्या तमाशा है तीनों पार्टियों का। आप पीछे 88 से तो हम देख रहे हैं कि पिछले 36 साल में इन सब पार्टियों ने मिलके ड्रामेबाजी है ना। पहले पीपल्स पार्टी और नून आपस में खेलते रहे, अब पीटीआई भी आ गई। अगर हम पीटीआई की बात भी करते हैं तो 3-4 साल में इन्होंने भी कुछ नहीं किया। बात यह है आम आदमी के मसाइल की तरफ जाए, जिस तरह अभी कर्नल साहब फरमा रहे थे एफबीआर के टैक्सेशन का इशूज है, आपके इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है। आप मेन इश्यूज के ऊपर बात करें। आप यकीन करें कि आप सुबह से लेके शाम तक आपको एक ही बंदे की पड़ी हुई है कि इसको सक्रिय हम कर लें। आप उससे हटे, आप आम आवाम के मसाइल की तरफ आए, चीजों की तरफ लेके आम आवाम का मसाइल तो किसी का भी फोकस नहीं है ना, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो कोई भी इदारा हो। मगर तो आम आवाम तो उसका मतमय नजर किसी का भी नजर नहीं आता जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। रियलिटी तो यही है, जो अभी की सूरत हाल नहीं है, ये तो फॉर डेकेड्स दिस इज हैपनिंग है। ठीक, लेकिन मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि अच्छी सियासत नहीं करेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छी सियासत क्या होती है, इस पे ब्रेक के बाद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए।